Once the word should was used. Chahiye was not used. This is not a updesh. This is not a sermon. This is an proposal of reality as it is. And people who are participating in this process are requested not to believe these proposals. In the beginning, right in the beginning, we say, don't believe. Mano mat. Maniye mat. Janchiye. What does janchna mean? How will we examine? So we are again requesting, let us not bring another great person into this room who is not present here. Let us not bring Mahatma Gandhi or Karl Marx or Isaac Newton or XYZ. Because we are the one who understand. Even if we understand Isaac Newton, we are the one who understands. I am the one who believes in Isaac Newton or not believe in Isaac Newton. So it is me who's at stake. It's not Isaac Newton who's at stake when we are participating in the process here. It's not the Bible or the Quran or the Gita who's at stake. It is me who understands Bible, Quran or Gita, who is in a dialogue with the speaker. So I am the knower. I am the believer. The whole process is to go from believing to knowing. That's what the proposals are. So they are proposals. That's the first thing that we need to recognize, that it is only a proposal. Proposals are not shoulds. Proposals are not sermons. Proposals are just proposals. For us to examine them within ourselves as per our understanding. And how will we say that this is acceptable to us? There is within us a faculty which tells us, yes, this is so. Like if I ask you, do you want to be in relationship? Not a single person will say, no, I don't want to be in relationship. I mean, as an argument, one can say whatever one likes. But if the person is reasonable, if he is not in animosity with me, and he doesn't want to make me just, unnecessarily disturbed, anyone will say, yes, we want to be in relationship. And all of us know that each and every person in the world, whether I know the person or I don't know the person, whether it is George Bush or Bin Laden, they also want to be in relationship. They may not know how to be in relationship. That's another question altogether. So being and doing are two different things. As far as being is concerned, we are all alike, all of us. So this is a proposal of being, of reality, not of doing. Now we need to make this distinction between being and doing. This is completely a proposal of being. As being, hona, we are all the same. That is the beauty of humanity. That is what humanity is all about. That is what humanness is all about. So this is a proposal of intrinsicness, which you cannot do away with. You cannot, as long as we are humans, it will be there. It is embedded in us. We cannot throw it out. So it is a proposal of what is within you, what is in you. And any entity, we can divide it into four different dimensions from which we understand any entity. Roop, Gun, Swabhav and Dharma. This is not a proposal about Roop. This is not a proposal about Gun. It's a proposal about Swabhav and Dharma, which is the ness, which you cannot do away with. It is there as long as you are human beings, as long as someone is animal, as long as someone is paid, someone is matter. It is there. That's the way it is. We cannot do it. So it is a proposal of the unchanging, of what is. So if we look at it that way, then we will, there will be a shift taking place. See, I'll just give you two examples. I'd like to share that with you. There is one person, of course Baba is there, and I'm not talking of him, but apart from him, today, one person that I hugely respect who's living is one person called Samdong Rinpoche. Samdong Rinpoche happens to be the Prime Minister of Tibetan government in exile. He is number 2 after Dalai Lama.
He was the director of Tibetan Institutes of Higher Studies based in Sarnath for 30 years. He is well versed in all the 6 darshans and Western philosophy, including Kant and Hegel. He is well versed in all these philosophies, and he was a great friend of J. Krishnamurti. If you will pick up one book, I forget the name, then there is a dialogue between Samdong and J. Krishnamurti, in that. Now this person I know for the last 10-12 years, and I have huge respect for him for various reasons, not just because he's learned, but he's living it that way. Very extremely humble, simple person. He has got no airs about him, etc. Well, I've heard him, we have interacted, and he talks about modern science in a very forceful manner, about Western civilization in a very forceful manner, about what is the problem in the universe today, about war, terrorism on one hand, about pollution and global warming on the other. These things he talks in a very profound manner. I just love it. So I went to him and with folded hands I said, Professor, please give me 8 days and attend this Jivan Vidya Shivir. Because what you are saying, you are only talking about the problems and you are analyzing the situation as it is. But we have a proposal which may have something else, which may have samadhan. Give it a shot. He said 8 days. How can I take out 8 days? It's too long a time, And I understand, he's after all, even if it's a government in exile, he's the Prime Minister after all. So, there are responsibilities. But whatever, I was able to persuade him. I found time, 2 hours I had to sit with him one night when he was, very, he had done his day's work, etc. So 2 hours I spent with him all alone, and somehow I said, you have to do it. If you believe me, give me those 8 days of your life. He agreed. So 2005 July, he came to us for an 8-day Shivir in Mussoorie. I would like to share what happened during that and what he said afterwards. First, a very interesting thing happened during the Shivir. Our Prime Minister Manmohan Singh ji was going to America. So their representative, Tibetan government's representative in Washington, he called up Samdong in Mussoorie saying that they are going to discuss, Manmohan Singh and George Bush are going to discuss China and Tibet. So I would like to have a discussion with you before I brief the Prime Minister, Manmohan Singh. I need to brief him before he meets Bush. Therefore, I need to consult you and it's very urgent. There's no time. Samdong ji said, I am in a Shivir. I am not going to move from here. Now look at it. For them, it is a major question, what happens, how Bush takes a decision about Tibet or China. It's a major decision, life and death. But he said, I'm in a Shivir, I've given a commitment is a commitment, I'm going to be here, I'm not going to move. If you want to discuss, you come here. And please come between 1:30 and 3. Because that is the time when I'm free. 3 o'clock the Shivir starts, 1:30 it gets over because we have lunch break. So that man flew down to Delhi from Washington, drove up to Mussoorie at 1:30, he was there, and they had a discussion during lunch break for 1.5 hours. 3 o'clock he said goodbye and came and sat in the Shivir before anyone else. That's one thing. This is just I'm sharing to show you what kind of a man he is. After the Shivir he said that I come from a tradition, Buddhist tradition, Theravada tradition, Mahayana tradition. I come from a tradition. In our tradition, we use words just like you use words. But we have specific meanings to those words. When I am listening to you, then the same meaning keeps coming to my mind. But I am aware that you are saying something else. Hence, I have to keep my meaning in a pending file. And I have to understand you in your terms first. I will now go back and evaluate by matching the two. But while listening to you, I have to listen it in your terms. Otherwise, I will go back
not understanding what you are saying. I will go back and try and mix and match with my own thing. That won't serve the purpose. This is what he said. So this is important. This is another person I met. Some Swami Visheshwaranand. He is proper, I'm told, he's number 2 man in the Chinmaya mission. He said exactly the same thing. So what I'm saying is that paradigm shift does not mean change in words. Paradigm shift means understanding the meaning. Importance is of the meaning. Importance is not of the word. Even if we are dumb, perhaps we can communicate. We can be in relationship. The bhav of relationship can get communicated even if we are dumb. We don't have words. That is important. So here the entire emphasis is on reality, which is with or without words. That remains. It's not the words which are important. So whether we build another terminology or not, which I am not against, of course we can build another terminology. By all means, let us do it. But main thing is, as far as understanding goes, as far as knowing goes, is this knowing different from what I have assumed it to be? I have assumed it to be snake, actually it is rope. This is what I am calling paradigm shift. Whether we call the rope by some other name or by snake by some other name, it could be. That's all right. I have no problem with that. But main thing is to understanding. At that level, is there a difference? Am I assuming the reality to be something else other than what it is? And this is what I felt in my first Shivir. That here was something else which is being Samman. What is Samman? I understood Samman as probably, showing respect. Showing respect. Here I understand that showing respect is a consequence of the bhava which is within me, which has no word. It is there or it's not there. Whether I show respect or not is not that important, but the bhava is important. So that bhava, with or without word, is the same. Showing can be done in many different ways. I can speak in English and show respect. I can speak in Hindi and show respect. I can speak in Tamil and show respect. I can touch your feet and show respect. There are various ways in which I can do it. Those may be. But the priority is of that bhav which is within me. That is the reality. So I think, I don't know whether I've been able to really address your question, but I tried in my own way. Yes, sure. I think time is up. You can meet him personally. Mr. Daftar will propose. That's very interesting deliberations from your side. We have also for last 7 days finding almost the similar thinking. The greatest thing about the whole thing is that we are keeping mankind at the center of the whole thing. Yes. And everything which is in the interest of the humanity, I think that needs to be appreciated. Maybe little bit differences are there. We have yet to go back and sit with our chapterization and understanding. And I think maybe a couple of more Shivirs, but the whole thing has been very interesting. We are really thankful to you for all the way coming here and sharing your thoughts with us. I would like to you all are very important to us, you see, because we feel that this thing needs to reach out to more people. And what better vehicle than teachers? Teachers are the best and most powerful vehicle. That's why we are focusing on, great people like you. Because other than that, you have the access to so many people which others don't, as a group. So as a token of our gratitude, I would like to request Principal Dr. Ghai from Management Institute of Somaiya Vidya Vihar to offer you a bouquet. Thanks a lot from all of us. Thank you, sir. हमारे बीच में अनुराधा दीदी मौजूद हैं और वो एक बहुत अच्छा गाना गाती हैं। तो आज की शुरुआत आपके एक गाने से करते हैं। अनुराधा दीदी। ये गाना हम लोगों ने बच्चों के लिए बनाया था और ये समर्पित है पूरे अस्तित्व को, बाबा को, सोम भैया को, जिनकी
एक शिविर के बाद ये निकला, मतलब बनाया गया। होना देखो, होना होना देखो, होना मैं हूँ निरंतर सुख चाहूँ, मैं हूँ निरंतर सुख चाहूँ, उस सुख के लिए समझ चाहूँ, उस सुख के लिए समझ चाहूँ। देखूं होना बस होना, मैं हूँ ना, मैं हूँ निरंतर सुख चाहूँ, मैं हूँ निरंतर सुख चाहूँ, उस सुख के लिए समझ चाहूँ, उस सुख के लिए समझ चाहूँ, समझ के लिए ये तन चाहूँ, करूँ सदुपयोग अगर मैं तन का, पाऊँ वो जो मैं चाहूँ, मैं हूँ निरंतर सुख चाहूँ, उस सुख के लिए समझ चाहूँ, समझ के लिए ये तन चाहूँ, करूँ सदुपयोग अगर मैं तन का, पाऊँ वो जो मैं चाहूँ, मैं हूँ निरंतर सुख चाहूँ। देखूं होना बस होना, मैं हूँ ना, देखूं होना बस होना। ऐसे पुराने गाने छूते हैं, कहीं भीतर से कोई तार को छूते हैं। हमको नहीं, हमको कोई संगीत का क्लैरिटी कोई कुछ नहीं है, ABCD नहीं पता है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ है जो भीतर में पहचानती है कि ये कुछ गहरे में छूता है ना। जैसे अभी इन्होंने जो गाया, शब्द बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कोई चीज़ है जो छूती है। तो जीवन में सारा संगीत जीवन से निकला, सारा संगीत जीवन की तृप्ति से निकला, सारा नृत्य डांस जीवन की एक खुशहाली से निकला। तो वहाँ वो हार्मनी को पहचानता है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि जांचना, और आदमी के भीतर इनेट इनहेरेंट कैपेसिटी है जो चीज़ों को पहचान पाता है कि हाँ यही चाहिए था। रूटीन में उस कैपेसिटी को किल करने का काम ज़्यादा हुआ, उसको नरिश करने का काम आदमी में समझने की मौलिक क्षमता है, कैसे उसको और नर्चर किया जाए, कैसे उसको नरिश किया जाए, बेसिकली ये शिक्षा का काम। चलिए आज हम लोग समराइज करने की ओर चलेंगे। जितना भी पिछले 6 दिन में हम लोग आपस में चर्चा करने की कोशिश की है, और हम सब ने बहुत सिंसियर एफर्ट किया है चीज़ों को समझने की ओर, बहुत सारे एंगल से उनको क्रॉस चेक करने की ओर, और अपने भीतर भी जांचने का एक प्रयास शुरू हुआ है। तो एक बार हम चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करेंगे। जहाँ हम कल थे वहीं से बैक लेना शुरू करते हैं, है ना। मानव से शुरू किया, परिवार समाज की बात अभी लास्ट में करेंगे। आज मानव से शुरू किया, परिवार और संपूर्ण प्रकृति तक पहुंचे। अब प्रकृति से वापस बैक गियर लेते हैं और लास्ट में फिर मानव तक पहुंचेंगे। हम लोगों ने होना को लेके काफी बातचीत की। जो है, इट इज इन द कोएग्जिस्टेंस।
सह अस्तित्व है, उसको केवल पहचानना है और एक्सप्लेन करने के लिए लॉजिक्स काम आते हैं। लॉजिक से हम इसको पकड़ लेंगे ऐसा नहीं है, लॉजिक इसकी तरफ इशारा करता है। अनुभव में भी हम किसी चीज को पकड़ पाते हैं, है ना। तो सारे लॉजिक के बाद भी जो एक अतृप्ति रहती है, लॉजिक की उतनी ही सीमा है। जो वो गहरी तृप्ति जिसकी हमको तलाश है, वो अनुभव है, वो रियलाइजेशन है, वो तर्क नहीं है, है ना। तर्क उसकी तरफ एक कदम है। चलिए अब इसको ब्रॉडली कर देते हैं। यूनिट्स और जो हमने दूसरी चीज को पहचाना उसको कहा खाली स्थान, स्पेस, कुछ और नाम जो दिए जाते हैं व्यापक। संपूर्ण होने का आधार यही है, इसलिए एक नाम सत्ता। सत्ता आजकल राजनीतिक सत्ता, जो सत्ता शब्द है, संपूर्ण अस्तित्व का आधार स्पेस है, इसलिए एक नाम सत्ता भी है। तो ये कुछ चर्चा हम लोगों ने की थी। ब्रीफली अब इन दोनों में ब्रॉडली क्या फर्क हम पहचान पाते हैं। देखिए, यदि पूरे शिविर को कहें तो केवल 2 पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट में हमारे बीच में चर्चा हुई, है ना। एक पॉइंट वो आया जब आया कि मानव जीवन और शरीर का साथ साथ होना है। जीवन और शरीर के साथ साथ होने की क्लैरिटी कि जड़ संसार एक सेपरेट दुनिया है जो गठनशील परमाणु से मिलकर बना हुआ मामला है। जीवन जो है वो फिजिकल नहीं है, इट इज समथिंग एल्स एंड ए रियलिटी, और जिसको हमने कल गठनपूर्ण परमाणु के रूप में देखा। तो मानव को समझने गए तो 2 चीजें मिली, को एग्जिस्टेंस ऑफ जीवन एंड बॉडी। एक तो ये शिविर का एक पड़ाव, और फाइनल पड़ाव जब यूनिट्स को देखने गए तो पता चला यूनिट्स आर इन स्पेस एंड स्पेस इज थ्रू यूनिट्स। यूनिट्स को देखने गए देन को एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस एंड यूनिट्स इज देयर। तो केवल इतना ही पूरी अंडरस्टैंडिंग है। सारी अंडरस्टैंडिंग कुल मिला के इतनी है 2 लाइन में, दैट्स इट। बाकी सारा एक्सप्लेनेशन है। केवल ये 2 पॉइंट क्लियर हो जाए कि शरीर जीवन, मानव जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है, और सारी इकाइयां स्पेस एंड यूनिट का सहअस्तित्व है। इकाई और स्पेस को एग्जिस्ट, है ना। इतना कुल मिला के सारी बात है। फिर सारी चीज को समझना, जीवन को समझना, स्पेस संपूर्ण को समझना। अभी यदि थोड़ा रिकैप करें, अब क्या कहेंगे। यूनिट्स का नेचर कैसा है? सीमित है, उसका आकार, आयतन सब सीमित है ना। इधर कैसा है? असीम है। और ये सारा मामला क्रियाशील है। जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो 4 अवस्थाएं। जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो विकास क्रम, कल हमने चर्चा की है। ये सारे शब्द आपको बुक्स में मिलेंगे। जब बुक्स पढ़ेंगे तो हमको इजी हो जाएगा, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर है। इधर क्या है? क्रिया शून्य। और कैसा है? क्रियाशील होने के आधार पे हर इकाई एक नियम से, उस पर एक नियम काम कर रहा है, वो नियंत्रित है, वो इकाइयां संतुलित हैं, है ना। नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है। इससे कहा कि, और मानव में जब जाएंगे तो न्याय, धर्म और सत्य ये मानव में है। तो कहा हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, और
समग्र व्यवस्था में भागीदार है। क्या कहा? निश्चित आचरण है। उसकी भागीदारी ही उसका मूल्य है, उपयोगिता है। मैं सोचता हूं ये सब पहले आ चुका है, इस सेशन में लिखना बंद कर दें। कैसा रहेगा? क्योंकि लिखने में आपका रिकैप होने की बजाय आपका ध्यान लिखने में रहता है, तो लिखना बंद कर दीजिए। बहुत कहीं इंपॉर्टेंट लगता है आप लिख लीजिए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब ये सारा लिखने वाला मामला बंद कर दिया जाए। इसी आधार पे निकल के आया, इस आधार पे निकल के आया कि अस्तित्व स्वयं में व्यवस्था है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम केओस मानते हैं, अनसर्टेनिटी मानते हैं, है ना? अस्तित्व स्वयं में व्यवस्था है। इसी आधार पर हम व्यवस्था को पहचान सकते हैं और इसी आधार पर हम उसके व्यवस्थित होने के स्वरूप को पा सकते हैं और हम स्वयं में व्यवस्थित हो सकते। कोई चीज व्यवस्थित है तो उसको समझा जा सकता है, कोई चीज अव्यवस्थित हो उसको क्या समझेंगे? हमारा सारा समझने का प्रयास और विश्वास का आधार है कि कोई निश्चित आचरण है। यदि अनिश्चित होगा तो क्या चीज को समझेंगे? निश्चित है इसलिए समझ पाते हैं, इसलिए उसके साथ में जीना बनता है। इधर देखें क्या है, पारदर्शी है, पारगामी है ना? All units are in space and space is through all units. Space is everywhere. All units are in space. All units are नियंत्रित, है ना? सबका आचरण निश्चित है। तो ये नियंत्रित करता नहीं है, इसमें होने के कारण नियंत्रण उपलब्ध है। देखिए शब्दों की एक सीमा है ना? उसके आगे जाके कहीं उसका शब्द में एक अर्थ होता है, अर्थ में एक रियलिटी होता है। वो रियलिटी तक अपने को पहुंचना है, शब्द केवल माध्यम है ना? नियंत्रण उपलब्ध है, ये नियंता नहीं है ना? क्या? कंट्रोलर नहीं है। एक शब्द आता है हिंदी में नियंता, नियंता है ना? नियंता नहीं है, कंट्रोलर नहीं है ना? स्वयं स्फूर्त कंट्रोल्ड है, इकाई स्वनियंत्रित, इसको कहेंगे स्वनियंत्रित है। तो कोई चलाता नहीं है संसार को, स्वयं स्फूर्त चलता है ना? बाय बीइंग एनर्जाइज्ड, अपने आप को ईश्वर सबको नियंत्रित करता है ना? चलाता है। ऐसा कहने की बजाय है ना, ईश्वर में इस सभी, ईश्वर में स्पेस, ईश्वर में सभी इकाइयां होने से, एनर्जाइज्ड होने से और पूर्णता, वो स्वयं में पूर्ण के रूप में हमने पहचाना, सभी इकाइयां व्यवस्था की ओर गतित हैं, है ना? दे आर टूवर्ड्स ऑर्डर, दे आर टूवर्ड्स ऑर्डर, इट इज देयर बिल्ट इन नेचर, बाय नेचर दे आर लाइक दिस। तो कोई कंट्रोल करता है, कोई इस पूरे विश्व को चलाता है। ये किसने पूरा संसार बनाया? बनाया नहीं है। ये हमारे पास इमेजिनेशन कहां से आ गई? आदमी ग्लास बनाता है, कंप्यूटर बनाता है, इसलिए हमको लगता है कि इसको भी किसी ने बनाया होगा। तो बनाने का मामला नहीं है, होने का मामला है ना? होने का मामला है। कैसा है? कोएग्जिस्टेंस है। दो शब्द और कल कहना चाह रहा था, कहीं मिस हुआ। तो एक तो ब्रह्म शब्द इसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म से निकला है। बेसिकली ब्रह्म शब्द जो है वो यहां पे फिट बैठता है। एक और शब्द है जो हम रूटीन में यूज करते हैं,
रूटीन में यूज करते हैं, परमात्मा, है ना? एक शब्द और हमारे बीच में है। तो अब मामला, अब रियलिटी तो हमको क्लियर हो गया कि जड़ परमाणु है, जीवन परमाणु है और स्पेस है, तीन ही रियलिटी है। तो जितने शब्द हमारे बीच में है वो कहीं ना कहीं जाके इन्हीं तीन रियलिटी को एड्रेस करते हैं। तो हमने जैसे देखा कि इकाइयों से ज्यादा सूक्ष्म है जीवन, जबकि जीवन भी एक इकाई है ना? फिजिकल चीजों से सूक्ष्म चीज जीवन, जीवन में भी और सूक्ष्म, सूक्ष्म शब्द आप तक कन्वे होता है, सूक्ष्म, है ना? क्या बोलेंगे? हाँ, है ना? और जीवन में सूक्ष्म चीज आत्मा, ठीक? और आत्मा से भी सूक्ष्मतम, जैसे अणु से सूक्ष्म परमाणु, इसलिए क्या बोलते हैं? परम अणु, परम प्लस अणु, तो अणु से भी कोई सूक्ष्म चीज को एड्रेस कर रहे हैं, आत्मा से भी कोई सूक्ष्म चीज, इसलिए कहा परम आत्मा। इसलिए एक शब्द इसको परमात्मा कहने का मतलब है, ये जो इसका नेचर है वो कोई आत्मा से भी सूक्ष्मतम कोई चीज है, कोई रियलिटी है, इसलिए उसको एक शब्द दिया। आत्मा से भी सूक्ष्मतम, इसलिए एक शब्द परमात्मा। कुल मिला के स्पेस, पारदर्शी, पारगामी, है ना? ये ब्रह्मा और परमात्मा पैरेलल नहीं होने चाहिए? ये सिनोनिमस है, ये सारे एक ही चीज, एक ही रियलिटी को हम अलग अलग एंगल से उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज में देखने की कोशिश कर रहे हैं, डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो शब्द हमारे बीच में है, या तो वो शब्द अपने आप में कल्पना है, वो रियलिटी नहीं है। यदि रियलिटी है तो क्या हो सकता है, किसको एड्रेस किया गया होगा? एक ऐसा बात। और ये स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है, इसी को मूल ऊर्जा कहा। और इसमें होने के कारण इकाइयां ऊर्जित हैं, एनर्जाइज्ड हैं। मूल ऊर्जा में डूबा होने के कारण, भीगा होने के कारण, इसको फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं काफी, है ना? इसकी अपनी डिटेल्स हैं, कैसे है ना? ये आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो शिविर के बाद जिसको हम अध्ययन कहते हैं, फिर उनमें फाइन डिटेल्स में जाते हैं। तो ये एक ब्रॉड जो हमने कल चर्चा किया, उसको हमने थोड़ा समराइज करने की कोशिश की। ये एक बात हमने देखी। अब इसको देख के ये बात समझ में आती है, अब ये पकड़ में आया कि मैं जीवन हूं। ये सारी चर्चा को करने वाला कौन है? मूल में तो मानव, और मानव के मूल में समझने वाला, सोचने वाला, बोलने वाला, है ना? और शरीर के माध्यम से करने वाला मैं ही हूं और मैं जीवन हूं। ठीक? अब दो चीजें आ गई। एक तो वो चीज है जो हमको प्राप्त है ही, और दूसरी वो चीज जो हमको प्राप्त करना है, इसको बोला प्राप्य। क्या चीज है जो एक जीवन को प्राप्त करना है? सबसे पहले एक शरीर, एक मानव के रूप में ही हम समाधानित हो सकते हैं। उसके बाद हमको समाधान प्राप्त करना है, उसके रोशनी में समृद्धि को प्रमाणित करना है, परिवार में और व्यवस्था के रूप में, है ना, जितना भी सारी, है ना, ये सब हमको प्राप्त करना है। सम्मान पूर्वक जीना है, विश्वास पूर्वक जीना है, ये सब हमको प्राप्त करना है। ठीक? क्या चीज है जो प्राप्त है ही? हाँ, यूं कहें तो कल्पनाशीलता तो जीवन में प्राप्त है ही, पर मुझसे एक अलग चीज क्या है? मैं ईश्वर में हर इकाई स्पेस में, ईश्वर में हम बोलते हैं डूबी है। भीगी है और घिरी है, सबमर्ज्ड, सोक्ड,
एंड डिप्ड, है ना। जीवन भी चारों अवस्थाएं स्पेस में डूबी हैं, भीगी हैं। जैसे कि रुई को पानी में डाल दें, उसका हर कण कण उससे भीग जाता है, अंदर बाहर सब तरफ, और घिरी है हर इकाई। डूबी होने के कारण क्रियाशीलता, मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, केवल सूचना देके छोड़ रहा हूं क्योंकि ये बुक्स में आपको मिले। भीगी होने के कारण ऊर्जित, और घिरी होने के कारण नियंत्रित। ऐसा हर इकाई हमको दिखाई देती है। हर इकाई क्रियाशील है, हर इकाई ऊर्जित है इसलिए क्रियाशील है, और हर इकाई का एक निश्चित आचरण है। मानव भी निश्चित आचरण के साथ जीना चाहता है, समझने के आधार पर निश्चित आचरण के साथ जी पाता है। निश्चित आचरण की स्वीकृति मानव में अनिश्चित आचरण के समय भी रहती ही है ना। तो हर इकाई, तो अब एक चीज समझ में आ गया कि ईश्वर हम सभी को प्राप्त है ही, और इससे बाहर निकलने का भी कोई तरीका नहीं है। हम सारी इकाइयां ईश्वर में हैं, ब्रह्म में हैं, ब्रह्म से निकली नहीं है, ब्रह्म में है। तो कुल पुरुषार्थ कितना है? पाने के लिए कुछ नहीं करना है। इट इज ऑलरेडी विद अस, वी आर ऑलरेडी विद इन इट। कुल मानवीय पुरुषार्थ कितना है? हमको सही सूचना मिल जाए, है ना, तो इसको बोलते हैं सह अस्तित्व अनुभूति। ये हमारे अनुभव में आ जाए, है ना, ये अनुभव में आ जाए। क्या अनुभव में आ जाए? को एग्जिस्टेंस अनुभव में आ जाए कि ये ऐसा है ना। तो हर इकाई के आचरण समझ में आ जाए, पूरा एग्जिस्टेंस एक व्यवस्था है ये समझ में आ जाए, मैं इस व्यवस्था में किस तरह से, मेरा होने का पर्पस क्या है ये समझ में आ जाए, तो हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है ना। प्रमाणित होने का मतलब स्वयं में व्यवस्था का होना है। तो सअस्तित्व अनुभूति कुल मिला के मानवीय पुरुषार्थ, सारी उपलब्धि इतनी है। इस सअस्तित्व अनुभूति को पाके यही मानव का चरम विकास है, जिसको एक भाषा दिया भगवान, देवी देवता या जागृत मानव। जिसने इसको अनुभूत कर लिया उसी को हमने मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, जो भी सारी बातें कहीं, कुल मिला के इतना ऐसा एक कैनवस निकल के आया। तो जो प्राप्त करना है वो पुरुषार्थ इतना ही है। सारा पुरुषार्थ, मैं शरीर क्यों चलाता हूं, है ना, समाधानित हो सकूं, उसको पा सकूं। यहां फिर सूत्र काम करना शुरू करता है। जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। इसको लिख लीजिए, ये काम की चीज है। तो ईश्वर हम सबको प्राप्त है ही, है ना। अभी ईश्वर बोलने से कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज लगती थी, क्या चीज है, एक मिस्ट्री सामने आता है। ये मिस्ट्री नहीं है, बहुत क्लियरली है कि हम इसी स्पेस में हैं, है ना, और थोड़ा सा शब्दों के बियॉन्ड हम जा पाते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं लगती है कि स्पेस क्या चीज है, इसके लिए मेरे को कोई अलग से कोई साधना। हाँ, वो मेरी अनुभूति में आ जाए, अभी सूचना है, रियलिटी समझ में आ गया, तीन ही है ना, जड़ परमाणु, जीवन परमाणु, स्पेस, और तीनों कोई रहस्य नहीं है। अनुभव संपन्न होना, दिल्ली कहाँ है इसकी क्लियर सूचना मेरे पास है, मैं गया नहीं हूं, है ना। क्लियर सूचना मेरे पास है तो पहुंचना काफी आसान है। जिस दिन मूड बनेगा, बाकी काम खत्म हो जाए, उस दिन चल देंगे। तो अब ये समझ में आता है कि हाँ, रियलिटी काफी निश्चित है। जैसे सब कुछ को समझना संभव नहीं है। एक चावल के पूरी टोकनी में अपन एक चावल निकालते हैं,
और उससे सारे चावल का हाल पता चल जाता है। सबको दबा दबा के देखते हैं क्या? तो उस तरह से पूरा एग्जिस्टेंस को देखें तो 3 चावल है ना, जड़ परमाणु, जीवर परमाणु और व्यापक सत्ता, स्पेस, है ना, और को एग्जिस्टेंस। इतना समझ में आता है तो पूरा सृष्टि का फैलाव कैसा है ना, वो हमको उसके बारे में स्पष्टता बनती है। इसका क्या मतलब है? जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। जो जैसा है उसको वैसा ही मान लो। जी। If it is condition, everything is right under that specific circumstance in that condition. So once we have understood that these are the conditions, now in that condition we have to survive and accept. So then as per that assumption, everything is right and behaving properly. Yes, provided it is condition. So we don't have to go beyond that condition. Provided it's a reality, है ना, क्योंकि अपने घर का कोई दुकान चलने वाला नहीं है एग्जिस्टेंस में, रियलिटी है ना। तो इसलिए जाने हुए को मान लो। जाने हुए को मानने का मतलब है कि वो आचरण में आ जाए। I am able to practice it. If I know something, then the result of it is that I should be able to practice it. If I am not able to practice it, then it means I am somewhere confused. I am not able to see the reality in totality. उसका कुछ झलक हमको दिखता है, किसी एंगल से हमको कुछ दिख रहा है, लेकिन टोटलिटी में नहीं दिखता है, इसलिए जीने में नहीं आएगा। उसके बारे में बात कर सकते हैं। जीने में कोई चीज तभी आएगी जब वो समग्रता में दिखती है, टोटलिटी में दिखती है। उसके पहले उसका कोई एंगल से हमको कुछ दिखता है, वो अधूरा हो सकता है, गलत हो सकता है। जाने हुए को मान लो, इसका मतलब है कि वो आचरण में। माने हुए को जान लो, क्या मतलब? जो भी हम मानते हैं, हाँ, comprehend. जो आचरण में आ गया उसके बारे में तो सारा ही कुछ खत्म ही हो गया, अब उसमें तो कुछ नहीं करना है। आचरण मीन्स प्रमाण, अब उसके बारे में तो बात पूरी हो गई। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एक्सेप्टेंस में है, वी एक्सेप्ट इट, लेकिन वो जानने में नहीं है। मैंने 4.5 क्रिया में है, मेमोरी में आ गया है। तो हमारी मेमोरी में दुनिया भर की सारी थ्योरीज, सारी फिलॉसफीज रह सकती हैं, हमारे आचरण में नहीं है, हमारे बिहेवियर में नहीं है। इसका मतलब है वो 4.5 क्रिया में है, वो 10 क्रियाएं अभिव्यक्त होना, एक्सप्रेस होना भी शुरू नहीं हुआ है। तो जो हमारे 4.5 में है, जो हमारी मेमोरी में है ना, हम लोग टेप रिकॉर्डर नहीं हैं, हमको हर चीज, हमारे अनुभव, वो रियलिटी तक पहुंचने के लिए एक सूचना थी। तो मैं उस सूचना को प्रोसेस करके जो माना हुआ है वो मेरे जानने में आ जाए, मेरे अनुभव में आ जाए, है ना। इसलिए ये 2 चीजें हैं। इसको कहा जाने, माने हुए को जान लो, ये है अनुभव विधि। अनुभव की ओर गमन, मूविंग टुवर्ड्स रियलाइजेशन, एंड रियलाइजेशन इज ऑफ कोएग्जिस्टेंस। इसको माने हुए को जान लो को निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण भी कह सकते हैं। जी जी, माने हुए को जानने का अर्थ निरीक्षण, पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण, है ना। जानना, जानने का अर्थ है जीना। हाँ, वो तो समझ है ना, वो तो आ गया। ये है अनुभव मूलक विधि। अनुभव मूलक मीन्स जिसके मूल में अनुभव है। अब चर्चा की जरूरत नहीं है, माने अब वो सारा डिस्कशन, सारी चर्चा, सारी अनुभव तक पहुंचने के लिए थी। अनुभव पे पहुंच गए, अब वो नेचुरल है, सहज है ना? बढ़िया। तो अनुभव, अभी हम लोग कहां पे हैं? अनुभवगामी। हमारे पास बहुत सारी थियोरीज हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। अब हमको सबको जांचना है ना। हम अनुभव संपन्न हो जाएं, और यदि
सही है तो हम उसमें हम अनुभव संपन्न हो जाएं। सही क्या है? व्यवस्था है, कोएग्जिस्टेंस है, हर इकाई का एक अपना निश्चित आचरण है। ये एक बात। हमने बात की थी सार्वभौम मानवीय आचरण, है ना? तो सारा समझ में आने से एक यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट का डिजाइन, उसका स्वरूप कैसा होगा उसको एक बार, क्योंकि उस यदि वो है तो उसके ऊपर ही फिर सारा एजुकेशन, व्यवस्था और संविधान बिल्डअप होता है। तो सार्वभौम मानवीय आचरण, यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट। So why are we restricted only to human conduct? Anything universal should be not only restricted to humans, but the entire. हाँ, ठीक ठीक, आपका आशय ठीक है। सब कुछ को, वो एंटायर को समझने वाला मानव है ना? जो अपन समझने में बात किए थे, स्वयं को समझना, एंटायर को समझना, दोनों के बीच रिलेशन को पहचान पाना एंड लिविंग अकॉर्डिंगली, है ना? तो बेसिकली मानव अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं ऑलरेडी अपने एक निश्चित बिहेवियर के साथ हैं। मानव का व्यवहार अनिश्चित है, जो चीज जैसी है उसको वैसा ना समझ पाने के कारण है, वैसा समझ पाने से उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका कंडक्ट कैसा होगा, उसकी एक चर्चा है। जब हम आचरण की बात करते हैं, हम एक मानव की बात करते हैं, तो मानव में एक तो चीज है समझ, है ना? जैसा हम किसी चीज को समझते हैं, जैसा समझते हैं वैसा उसके प्रति भाव है। मैं आपको अपना भाई मानता हूं, तो आपके साथ एक जो संबंध है, संबंध में एक मूल्य है ना? तो एक तो चीज है मूल्य, जिसको हम भाव शब्द, चूंकि काफी मिसयूज हो गया है इसलिए मूल्य शब्द को लाते हैं, क्योंकि हमने अभी चर्चा की थी कि हर चीज, हर इकाई का मूल्य निश्चित है। मूल्य मीन्स उसकी उपयोगिता, उपयोगिता मीन्स उसकी व्यवस्था में भागीदारी। तो हर इकाई का व्यवस्था में भागीदारी निश्चित है, वो यूनिवर्सल है, वो चेंजिंग नहीं है। तो मानव जब एंटायर को समझता है तो एंटायर के लिए का उसकी जिंदगी में उसका कैसा उपयोगिता को वो फील कर पाता है। जैसा हमारे पास मूल्य है, समझ है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे विचार हैं। तो मानव में एक पक्ष है विचार, और इस विचार को जीते हैं तो कार्य और व्यवहार, इतना ही कुल आदमी है। समझ नहीं होगी तो कोई मान्यता होगी, कोई कंडीशनिंग होगी, और कंडीशनिंग के आधार पे विचार होंगे, और विचार जैसा होगा उसके आधार पे कार्य और व्यवहार होगा। बढ़िया। मूल्यों की बात करें, ये विचार को ही कहा नैतिकता, और कार्य और व्यवहार को कहा चरित्र। तो चरित्र, मूल्य, चरित्र, नैतिकता, तीनों को एक साथ कहा मानवीय आचरण। सो आचरण इज सो बिग। इसके लिए कौन सा शब्द अब ढूंढेंगे? एग्जैक्ट वर्ड आचरण का क्या हो सकता है ना? आप उसको बेहतर कह सकते हैं, है
है ना। हाँ, कंडक्ट में इतना फैलाव है क्या, मेरे को पता नहीं है। इस तरह से कंडक्ट का फैलाव है ना, वो आपको देखना है। हाँ जी, मूल्य की बात करें, वस्तु मूल्य, वस्तु मीन्स फिजिकल चीजें, यहां पे वस्तु का मतलब फिजिकल चीजें हैं। तो फिजिकल का मूल्य क्या है मानव के संदर्भ में? तो सारा फिजिकल संसार, यस, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य, दो मूल्य। सारा भौतिक संसार, भौतिक रासायनिक संसार, तीनों अवस्थाएं मानव के लिए उपयोगिता मूल्य। क्या चीज के लिए उपयोगिता? सुविधा के लिए उपयोगिता। क्या चीज के लिए सुविधा? शरीर को बनाए रखने के लिए, गति प्रदान करने के लिए। और कला मूल्य उपयोगिता को और बढ़ा दे, इसका मतलब कला मूल्य। शेर की खाल ड्राइंग रूम में टांगने का मतलब कला नहीं है, कुछ भी कला हमने कर डाला। तो बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, बिना आदमी का शोषण किए, है ना, जो अच्छा लगने की सीमा है ना, वो कला मूल्य। और उपयोगिता को बढ़ा लेना, ये कला मूल्य है ना। जैसे चेयर है, साथ में ऊपर एक दे दिया, इससे इसकी उपयोगिता बढ़ गई, है ना। चेयर के पीछे वो प्लास्टिक के चेयर के पीछे में छेद हैं, तो थोड़ा वेंटिलेशन मिल जाता है। एक डिजाइन भी बना दिया, देखने से भी अच्छा लगता है ना। लकड़ी की चेयर बना ली, अपना आपने कला, वो एक्सेलेंस। हाँ जी सर, कुछ करना। यहाँ एक जो मूल्य है कि एखादा आदमी गाना गा रहा है या एनी लेडीज परफॉर्मिंग अ डांस, वो क्रियाओं से जो हमें एक प्रकार की अनुभूति मिलती है, वो अनुभूति का मूल्य कला है ना। तो अब इसको बहुत निश्चित करने की जरूरत है कि न्याय, धर्म और सत्य के अर्थ में सारा क्रियाकलाप। हमने कुछ ऐसा बोला, हमने कुछ ऐसा किया जिससे हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट जाग उठा, ये कौन सा कला है? ये कला नहीं है, ये कला का दुरुपयोग हो गया। साधन का दुरुपयोग, कला का दुरुपयोग, है ना, जिससे मेरे भीतर मानव और मानव के साथ जीने में हेल्प मिलती हो, जिससे मानव को व्यवस्था में जीने में हेल्प मिलती हो, जिससे मानव को संपूर्ण को समझने में हेल्प मिलती हो। इस अर्थ में सारा कला, साहित्य, कविता और जो भी फैलाव है, उस चीज का एक अपना उसका स्पष्ट होता है कि उसका स्वरूप कैसा होगा। फिर भी ये दुरुपयोग हो गया, वो ठीक है, तो वो मूल्य क्या है? वो कोई मूल्य नहीं, नहीं, वो अधिमूल्यन, अवमूल्यन, अमूल्यन। तो अवमूल्यन हो सकता है, अवमूल्यन। देखिए, इसी संदर्भ में यदि इसको बिल्कुल कॉन्क्रीटली कहें तो सारा डांस और नृत्य बेसिकली वो अनुभूति के क्षणों का, या आदमी किसी हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में गया। सारा भरतनाट्यम देखिए, सारा वो देखिए, कहीं ना कहीं वो ईश्वर की स्तुति और वो भक्ति के स्तर का काम है। तो भक्ति की जगह में यदि हमारा कॉन्शियस लेवल उस लेवल का नहीं है, तो वो मनोरंजन तक आके रह गया, और सारा मनोरंजन वो इंस्टिंक्ट के पोषण के लिए चला गया, बाजार होके रह गया। If you use word मनोरंजन, the meaning is different. चलिए, मनोरंजन, That will go to at a higher state. चलिए, एक उसका मीनिंग रिफ्लेक्ट होता है कि वाकई में जो आप कह रहे हैं वो किसी सही अर्थ में था, और वो डिटेरिएट होते 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 तो अवमूल्यन है, अधिमूल्यन है, अमूल्यन है। मूल्य का मतलब है व्यवस्था में भागीदारी। मानव मूल्य, मानव मूल्य क्या है? मानव मूल्य मीन्स, मानव मूल्य मीन्स, मूल्य मीन्स
उपयोगिता। मानव मूल्य मीन्स मानव की उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब व्यवस्था में भागीदारी। तो कुल मिला के मानव का व्यवस्था में भागीदारी। मानव व्यवस्था में भागीदार है तो एसेट है, अव्यवस्था में भागीदार है तो लायबिलिटी है। ठीक। मानव मूल्य का मतलब है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। धीरता मीन्स धैर्य। क्या चीज के लिए? झेलने के लिए, झिलाने के लिए, झेलने के लिए धैर्य। ये धीरता ठीक है। कुछ दिन झेलना मतलब पशु मानव, झिलाना माने राक्षस मानव। तो हमारा सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सो कॉल्ड पशु मानव से राक्षस मानव की तरफ जाता है ना। तो ये तो मानव नहीं हुआ, है ना। तो अब धीरता का सही अर्थ क्या होगा मानव के संदर्भ में, है ना। प्रमाणित होने के लिए निष्ठा। मैं एक मानव हूं, मैं एक मानव हूं, मेरा मानव होना, मेरी वास्तविक पहचान मुझको चाहिए, है ना। मैं क्या चीज हूं। अभी भी हर आदमी अपनी हर एक्टिविटी में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता ही रहता है। शरीर मानता है तो धन पद के आधार पर प्रूव करने की कोशिश करता है, दूसरों पे डोमिनेशन के आधार पे प्रूव करने की कोशिश करता है। जो स्वयं पे राज नहीं कर पाता है वो दूसरों पे राज करके अपने उस स्वयं पे राज ना कर पाने की स्थिति का पोषण करता है। जो स्व अनुशासित नहीं है, है ना, जो स्व नियंत्रित नहीं है, जिसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जो अपने आप में समझदार नहीं है ना। अच्छा, जिसकी अपने पे नहीं चलती वो दूसरों पे चलाता है। जिसकी अपने पे चलती है वो दूसरों के दिलों पे राज करता है। जैसे आप दिलों पे राज करती है, गलत मामला। माने भाषा अच्छी नहीं है ना, क्योंकि राज करना भाषा ही गलत है। माने हम परस्पर पूरकता में जी पाते हैं। दिल पे तो एक ही के राज करते हो, बाकी सबके ऊपर राज। हम तो आपके भी करना चाहते हैं। जीवन के साथ परस्परता, है ना। देखिए कितना कैसा फिनोमिना है। एक मेल के साथ में दोस्ती का जो सुख पाता है वो कम है क्या? और अभी तो भ्रमित स्थिति में है जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं। यदि पूर्णता के अर्थ में एक मेल का दूसरे मेल के साथ जुड़ाव होगा तो वो कितना सुंदर होगा, एक कल्पना की जा सकती है। उसी तरह से एक फीमेल के बीच भी, तो ये मेल के बीच में जो परस्परता है और जो सुख है वो क्या चीज का है? संबंध का, जीवन से जो पहचानना है। कोई मुझको पहचानता है। एक कुत्ते का बच्चा पिल्ला जैसे संस्थान में घूमते रहता है, वो भी आपके पीछे पीछे चलता है तो कितना अच्छा लगता है, कम से कम पहचानता है ना। एक छोटे बच्चे को गोद में लेने के लिए हम सारे एफर्ट मार डालते हैं, किसी तरह से रिस्पॉन्स दे। कोई चीज हमको रिस्पॉन्स देती है ना,
मुझको पहचानता है, ये अपने आप में कितना सुकून का काम है, कितनी एक खुशी है। तो कोई दूसरा मुझको पहचाने, हो सकता है उसके पास फुर्सत ना हो सकता है उसके पास योग्यता ना हो। एक बात समझ में आई, मैं स्वयं को पहचान पाता हूं तो मैं सुखी होता हूं। अभी ये इनडायरेक्ट मेथड है कि आप मेरे को पहचानो। डायरेक्ट मेथड ये है कि मैं स्वयं को पहचान लूं, है ना। ये मेरे स्वयं पे राज करने का राजमार्ग है, स्वयं में समझ जीने का राजमार्ग है। तो जो स्वयं पे राज कर पाता है, जो स्वनियंत्रित स्व अनुशासित हो पाता है ना, वो दूसरों के साथ अपनी परस्परता को पहचानता है, अपनी उपयोगिता को पहचानता है, अपनी उपयोगिता के साथ जी पाता है, तो उत्सव मनाता है। यही स्वतंत्रता है। इससे कम में सब गुलामी है। तो वातावरण के दबाव से मुक्त हो जाना ही स्वतंत्रता है। वातावरण के दबाव से मुक्त हो जाना ही स्वतंत्रता है। कोई दबाव नहीं, ना किसी की गाड़ी का, ना किसी की साड़ी का, है ना। आदमी अपने पद से बड़ा हो जाए। मैं नागपुर में था तो वहाँ एक रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनका प्रिंसिपल रेजिग्नेशन लेटर अपनी जेब में रखता था। पता नहीं आप उसमें थे कि नहीं थे, हमेशा जेब में रेजिग्नेशन लेटर। हाँ, ट्रस्ट उस पर अपनी चला ले, मैनेजमेंट उस पर अपनी चला ले, उसकी मजाल नहीं थी। तुरंत जेब में रेडी है हर दिन। मैं तो ऐसा ही हूं। मैनेजमेंट की मजबूरी है उसको रखना, उसकी मजबूरी नहीं है। ये आदमी का दम है ना। तो मेरी उपयोगिता इतनी है कि आपको रखना मेरी मजबूरी है या परस्परता है। ये आदमी का दम है। तो स्वतंत्रता का मतलब है वातावरण के दबाव से स्वयं को मुक्त कर लेना, इतना उपयोगी हो जाना कि मैं असुरक्षा से मुक्त हो जाऊं, इतनी उपयोगिता बढ़ जाना मेरी कि मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है ना। विकल्प ही विकल्प है। बढ़िया। देखिए, मेरा अपना छत्तीसगढ़ आने के पहले लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस रूरल डेवलपमेंट में रहा, और उन 3 सालों में मेरे को, जब मेरे पास विद्या नहीं थी, कोई दर्शन नहीं था, कोई समझ नहीं थी, तब मेरे पास बहुत साफ कंक्लूजन्स थे। सरकारी पैसे से विकास नहीं होता है, और सरकारी पैसे से बिल्कुल नहीं होता है। एक, यदि विकास होगा, यदि तो एक टीम चाहिए, लोग चाहिए, कॉम्पिटेंट चाहिए, और एक साथ कॉम्पिटेंट लोगों की टीम होगी, इसके बिना कुछ नहीं होगा, है ना। यदि वाकई में हम उपयोगी लोग हैं तो समाज का पैसा समाज के सामने समाज के लिए इन्वेस्ट होगा। ये काला कागज बनाने की हमको जरूरत नहीं है ना। तो आज ये जब ये फिलॉसफी मिली है तो हमको लगा कि हाँ, ऐसे जैसे अभी बहुत सारी बातें होती होंगी, आपको लगता होगा हाँ मैं तो ऐसे ही सोचता था, यही तो ठीक है। हमारे पास बहुत सारा रियलिटी, बहुत सारा सही पहले से मौजूद है, लेकिन उस सही का कोई यूनिवर्सल ग्राउंड हमारे पास नहीं है, तो हमको अपने ही सही के प्रति शंका होने लगती है। क्योंकि अभी हमारा सही गलत का फैसला भीड़ के आधार पर है, कितने लोग इस बात को मानते हैं और कौन लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, है ना। तो अभी हमारा सही गलत के फैसले का, जैसे आज की डेट में अब हम कहें, कितने प्रतिशत लोग होंगे जो स्वयं को शरीर मान के जीते होंगे? 99.9 या 99 जो भी हो, है ना। अब इससे एक बात समझ में आती है कि सारा संसार भी कोई गलती करे, इससे वो ठीक नहीं हो जाता है। ट्रुथ रिमेन्स ट्रुथ, हम उसको समझें कि नहीं समझें, है ना। हम समझते हैं तो उत्सव पूर्वक जी पाते हैं। कुल मिला के बात इतनी। इसको पूरा कर दूं, फिर नाश्ते के लिए चलते हैं। हाँ, इंडिस्पेंसिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी जो दो चीजें हैं जो अभी कही गई, मेरा ख्याल है ये दोनों जो है रिलेटिव हैं, और उपयोगिता जो है शुद्ध एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसलिए उपयोगिता बढ़ाना चाहिए। इसलिए जो कल बात हो रही थी कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं ढूंढने हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तब तक 10 प्रॉब्लम और खड़ी रहती हैं, 10 का ढूंढते हैं तो 50 खड़ा ही रहता है। हमेशा वी आर इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सीधा सीधा
समाधान को समझना और जीना, बाईपास मार दिया। और अभी भी इसका प्रैक्टिकल रूप बताऊं, शिविर के दौरान हम किसी से नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, कोई बातचीत नहीं, क्योंकि एक एक आदमी का पर्सनल प्रॉब्लम को सुनना ही नहीं, सीधा सीधा समाधान। खेत में जहां जहां पानी चाहिए पानी छोड़ दो, जहां जहां जरूरत होगी चला जाएगा। तो हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू, बिना बताए हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इससे सम्मानजनक और क्या होगा। अधिकांश स्थिति ये होती है कि बिना शेयर किए हमको अपने लिए सूत्र मिल जाते हैं, हम उन सूत्रों पे काम करना शुरू कर देते हैं, और हमको ये भी समझ में आता है कि जितनी समस्याएं हैं वो और हमारी समझ में कमी के कारण है। तो समझ को पूरा करने का काम किया जाए, समस्याओं पे कितनी ही चर्चा करते हैं, बात और बिगड़ जाती है। घर में झगड़ा हुआ, चलो बैठते हैं, बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी थी, इतनी बात करनी है। उससे झंझट और बढ़ता है ना। तो इसलिए अपन चर्चा किए कि दुख, भ्रम, अंधेरा का अस्तित्व नहीं है ना, समाधान की आवश्यकता है। तो जब भी प्रॉब्लम है, समाधान का स्विच ऑन किया जाए। इसको पूरा कर दो। वीरता, वीरता वीरता किसको बोलेंगे? है आत्मविश्वास से अपने मन के भावों को, सही भावों को एक्सेप्ट। ये बहुत खराब काम है। बोलने में ठीक लगता है, बहुत लोग बोलते हैं हम कुछ भी गलती करें ना, आप हमको बता देना, है ना। एक गलती बताते ही आदमी तिल मिला जाता है। ये नहीं चलता है। घर में देखो कितना चलता है, जहां प्रशंसा 1000 बार करो एकदम खुश, एक बार कह दो ये ठीक नहीं है, सब हिसाब किताब बराबर। ठीक है, सही को ही शेयर किया जाए, है ना। तो वीरता का मतलब है दूसरों को समझदारी के लिए प्रेरित कर पाना। आ रहे भाई, आ रहे। उसको भी समझाना पड़ेगा। और नरसिम्हन जी सोच रहे हैं मैं उधर समझाने चला जाता हूं। दूसरों को समझदारी के लिए प्रेरित कर पाना, ये वीरता का काम है। देखते हैं आप लौट के अपने इंस्टीट्यूशन में कितने लोगों को समझदारी के लिए प्रेरित कर पाते हैं। प्रमाण चाहिए ना। उदारता, उदारता। अभी तक वीरता क्या थी? 2-4 को निपटा देना, है ना। कलम से निपटा देना, बल से निपटा देना, है ना। मसल पावर, मनी पावर, आर्म्स पावर और ब्रेन पावर, निपटाने से मतलब है। ज्यादा हमारी वीरता भी उधर ही लगी है। न्यू सेंस वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं फोंडेकर जी? न्यू सेंस वैल्यू, है ना। घर में जो बहू ज्यादा झगड़ालू है उसका सब ध्यान रखते हैं, यार ये झंझट, ये नाराज नहीं हो, इसको जो चाहिए पहले दे दो। तो बाकी बोलते हैं वो खराब है, उसके इतना ध्यान रखते हो। हम लोग इतना अच्छा करते हैं फिर भी हमारा ध्यान नहीं देते हो। भैया तुम ठीक ठाक हो इसलिए ये और खराब ना हो, इसलिए इसका ध्यान रखो। तो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने का तरीका न्यू सेंस वैल्यू। हाँ जी, उदारता। अपने तन, मन, धन को प्रसन्नता पूर्वक दूसरों की जागृति के अर्थ में नियोजित करना।
investing body, mind and money towards others' awakening willingly. It's my pleasure, that is why I am doing it. ना मोक्ष के लिए, ना किसी और चीज के लिए, ना किसी लालच के लिए, मेरी खुशी है इसलिए करता हूं। मोक्ष भी एक लालच ही है ना। खुश होके कुछ करना, कुछ होने के लिए कुछ करके खुश होना, खुश होके करना, करके खुश होना, ये दोनों एकदम उल्टा डिजाइन। उदारता, चलिए कुछ उदारता आपके लिए अर्पित किया जाए किचन में। नमस्कार। Can space not get affected by units? आज नहीं है स्पेस, तो आज क्रिया शून्य है, दैट इज ओके। ऑलवेज, तो ऑलवेज कैसा हो सकता है? बिकॉज देर इज ऑलवेज सम, एवरीबडी इज इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इन दैट केस यूनिट्स थ्रू देयर परस्पर संबंधता के वजह से देर विल बी सर्टन चेंजेस टेकिंग प्लेस, एंड ये स्पेस भी यूनिट से आर पार है, right? So in that case it is quite likely that not today but after some time when this interrelationship gets analyzed, there may be certain structural changes in the space itself. I think we will have to think of that particular matter as well. Okay. इनके बिंदु हैं, पर ये बहुत क्लियर है कि वो क्रिया शून्य है, अखंड है, पूर्ण है मीन्स ऑलवेज, है इटसेल्फ मीन्स ऑलवेज, तो वो ऐसा ही है। अब इसको अपने को समझना है। कुछ नहीं है, वो बिल्कुल वहाँ कोई यूनिट, हाँ, सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस यूनिट्स में है, वो यूनिट नहीं है। इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट रियलिटी। अभी हमारी सारी कल्पना यूनिट्स के साथ है। ख्याल आता है कि ऑब्वियसली ये रियलिटी के ग्लिम्पसेस हमारे पूर्वजों ने लिए थे, बट वी सीम टू हैव डिट्रैक्ट फ्रॉम दैट रियलाइजेशन। उसको ड्वेल करने के बजाय दुकानें खुल गई धर्म की, हाँ, क्योंकि ये वर्ड्स जैसे कंकन में ईश्वर यूज, कुछ तो देखा ही होगा तभी ये शब्द आए। यही बात है। हाँ जी, चलें। 10। हाँ, ये मूल्यांकन फॉर्म कहाँ पे ला रहे हैं? डोमेन, अच्छा ठीक है, ठीक है, रखे जब ये सेशन खत्म होगा तब देना। हाँ जी, चलिए थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। तो धीरता, वीरता, उदारता पे हमने कुछ चर्चा की। ब्रीफ में थोड़ी सी चर्चा मैं सूत्र में लिख देता हूं केवल। दया का मतलब है पात्रता के अनुरूप वस्तु उपलब्ध करा।